for Pratibha Vilas Evan Trophy coming soon. बहुत खूबसूरत बैनर, रेड गोल्डन और ब्लैक का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन. Back to cricket. Two openers on the ground. Welcome all of you. You are watching Challenge Trophy 2023, and with me Rakib Ansari joining in commentary. So two openers on the ground. Sandesh and Bhavesh and Rahul is going to be from Komarpada. Chetan Wagmare. This is the view of the commentary box. Right of me, the official scorer Asif Rangrez, and right of Asif Rangrez, one of the great commentator Rakib Ansari. Back to cricket. Here goes Chetan Wagmare. Goes to Bhavesh, goes his back foot and tapped as ball, misfield. They're looking for a second, in come throw, and finally makes it easily. So Bhavesh off the mark with 2 and Ignesh 11 runner, 2 for no wicket. बिल्कुल वहां पर पहली गेंद को सम्मान दिया, हल्के हाथों से खेला, मिसफील्ड हुआ और सीधा 2 रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज. 2 की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोला भावेश ने. ब्लैक शर्ट वाले जो ऑडियंस है, आपको अंदर जाना है. थैंक यू. Here we watch Chetan Wagmare charging from here. Ball this time tried to pull it, wasn't a bad delivery. Ball is travelling slowly to mid wicket, and enough. There is enough time batsman cross for a easy single. 3 for no wicket. बिल्कुल वहां पर उतना अच्छा कनेक्शन नहीं हुआ था भावेश सर. अगर हम देखें भावेश के बल्ले से 1 रन ही पूरा कर पाए दोनों बल्लेबाज. 1 की मदद से स्कोर आगे खिसका है, 3 रनों पर जा पहुंचा है. आज के दिन का हम आखिरी मैच देख रहे हैं दो जबरदस्त टीमों के बीच में. Here we watch Wagmare. This time played beautifully, but find the fielder at deep extra cover. And with the stroke, Rahul Tare off the mark with single, and his score is 4 without loss. Tomorrow, very exciting matches in Challenge Trophy. This time a lovely looking on drive, straight to long on, slightly fumbling, but batsmen settle for 1. Not interesting in second. Runs coming in form of singles and 2s, and his score is 5 for no wicket. Tomorrow very exciting matches. Harshid Enterprises meet MTC at 9 a.m. This time hits in the air, could be caught. What a catch! What a taken from the fielder, a running catch, and finally batsman on his way. बहुत ही अच्छा कैच वहां पर ओम प्रकाश का वाइडिश लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए थे. काफी लंबा सफाई तय करने के बाद उन्होंने एक रनिंग कैच पकड़ा. इस बार बड़े हिट के लिए गए थे. बहुत डेंजर जोन को वहां पर क्लियर करने की कोशिश थी बल्लेबाज की, लेकिन कनेक्शन अच्छा नहीं बना और आउट हो गए राहुल तरे सस्ते में. इमर्जिंग है कि कल भी फर्स्ट विकेट इज fallen now. His score is 5 for the loss of 1 wicket. Tomorrow, City Emerging Cricket also. Tomorrow, first Harshid Enterprises versus MTC Sports. NK Sport meet Zohan Sport. Zian Sport Mapoli meet winner of first game. Zaldis Sports and winner of second game. Challenge Sport tomorrow and Anjuman. What a match! Challenge versus Anjuman, and winner of third match and winner of fourth match. बिल्कुल भावेश सर, आपने जिस तरह कहा कि व्हाट अ मैच, और सिटी इमर्जिंग क्रिकेट की बहुत बड़ी राइवलरी है अंजुमन और चैलेंज के बीच में. Chetan Wagmare. Chetan Wag claimed the very important wicket. Now new man in
Yashraj Patil. Short thurman, short fine leg, deep cover, deep extra cover. Long off is statish, long on is wideish, wideish mid wicket, and man at orthodox at mid wicket boundary. Here goes Wagh. This time try to play across the line, long way shuffle. Ball is travelling in slip. No damage has been done. That marks end of the excellent over turn from Chetan Wagh. Consider 5 runs and 1 wicket. बिल्कुल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, जबकि अगर हम देखें पहली शुरुआती 2-3 गेंदों में बहुत ही इत्मीनान से बल्लेबाजी हो रही थी, लेकिन उसके बाद अच्छी कसी हुई गेंदबाजी की यहाँ पर चेतन वाघ ने एक सफलता हासिल की। यशराज पाटिल ने पहली गेंद पर बड़े हिट की कोशिश की, जिस तरह से उन्होंने पिछले मैच में पारी की शुरुआत की थी, इस बार लेकिन नाकामयाब रहे। ये देखिए वहाँ पर धर्मवीर आनंद दिगे जी का खूबसूरत कटआउट दिखाया जा रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है इस टूर्नामेंट के माध्यम से। बहुत से ऐसे चैलेंज के स्पर्धाएं रहे जहाँ पर क्लोजिंग सेरेमनी में दिगे साहब रहे थे। एक ओवर की समाप्ति 5 रन 1 विकेट। आप देख रहे हैं चुनौती भरा क्रिकेट, चैलेंज ट्रॉफी 2023। गेंदबाजी में ओम प्रकाश आए, दुबला पतला शरीर है। विकेट कीपर जोहरम बहुत बड़ा नाम है। 15-18 साल से मैं देख रहा हूँ, जब भी वो बल्लेबाजी को आते थे मैं कहता था कि जोखम लेके बल्लेबाजी कर रहे जोहरम। आज भी 2 सिक्सर जड़े। साइड आर्म गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, कोन बना के पहुंची विकेट कीपर के पास। देखिए साइड आर्म गेंदबाजी का आजकल चलन ही चल गया है। लसित मलिंगा चले गए, लेकिन उनकी जगह पे तिशरत आ गए श्रीलंका के। मतीसा पति राणा है बाली सर। अच्छा, साइड आर्म गेंदबाजी की एक बात है कि इसका यॉर्कर गिरा तो परफेक्ट, वरना गया तो बाहर। फुल टॉस, स्विंग कर दिया है, भिंगड़ी शॉट, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 6 रन। देखिए बाबे सर, आपके कहने की देरी थी, अगर इसका परफेक्ट गिरा तो ठीक, वरना फिर बल्लेबाज उनको ठीक कर देता है। और फुल टॉस गिरी, उसका लाभ उठा लिया वहां पर बल्लेबाज ने। देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी बहुत से ऐसे गेंदबाज आए जो लसित मलिंगा बनने की कोशिश की। ये देखिए बल्ले का स्विंग कितना अच्छा है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन लाजवाब, गजब का शॉट, 6 रन। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा इस वक्त 11 पे। खाता खोला सिक्सर से नहीं, भावेश ने शॉट खेला है, 10 पे बल्लेबाजी कर रहे। ओम प्रकाश लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, फिर वाइट, दबाव में आ गए। आज की शाम का ये आखिरी मुकाबला है और चैलेंज पे साए इस वक्त लंबे होते हुए, क्योंकि हमारे दाईं और सामने रेसिडेंस कॉलोनियाज है। बोल्ड, परफेक्ट यॉर्कर, यही कहा था मैंने, जड़ में गेंद और जड़ से उखाड़ दिया स्टंप। इस तरह के गेंदबाजों की यॉर्कर बहुत परफेक्ट रहती। और बिल्कुल जब इस तरह के गेंदबाजों की यॉर्कर गिरती है तो बल्लेबाजों के पास कोई भी मौका नहीं होता। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत यॉर्कर, बैकलिफ को ऊंचा किया और अब पवेलियन का रास्ता देखना पड़ेगा बल्लेबाज को। अजयगरत इस ग्राउंड की तारीख में 2 मरतबा ऐसा हुआ है जब मेन गेट को लॉक करना पड़ा है। एक मेयर कप सिल्वर जुबली में जब चेन्नई सुपर किंग के जो ड्रम बजाते थे वो यहाँ पे मौजूद थे। कैपेसिटी के ऊपर ऑडियंस होगी, ग्राउंड लॉक किया गया, जाली बिल्डिंगों के टेरेस सब फुल थे। और एक जब अमर उपाध्याय आए थे यहाँ पे, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी। बारह रन 2 विकेट, 12 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। कहीं याददाश्त मेमोरीज है। कपिल देव ने कहा था
वो प्रियांशी स्टूडियो में बैठ के कि मुझे कोई ये कहता कि टेनिस का कोई ऐसा टूर्नामेंट होता है तो मैं बिलीव नहीं करता। मैंने आंखों से देखा इसलिए बिलीव कर रहा हूँ। बिशन सिंह बेदी का जिस तरह से रस से उनको अंदर लाया गया था, वो पाकिस्तान से अच्छा परफॉर्मेंस दे के आए थे जब भी ऐसा सत्कार नहीं हुआ था। इस मरतबा आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, देखना है क्या कुछ हुआ है। स्क्वायर लेग पर गेंद गई है, 1 रन आता हुआ स्कोर में लेग बाई का। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 पे पहुंचा। हरभजन सिंह, ज़हीर खान, नीलेश कुलकर्णी, वसीम जाफर जब ऊपर के कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ थे तो वो कह रहे थे, हरभजन बार बार कह रहे थे कि मेरा दिल चाह रहा है कि यहाँ मैच खेला जाए। बढ़िया गेंद, तीखा जवाब, स्विंगिंग यॉर्कर। बिल्कुल, देखिए भावेश सर, ये हमारा भिवंडी शहर और टेनिस क्रिकेट ही ऐसा है जो कोई भी आता है उसका मन मोह लेता है। नहीं, देखिए चैलेंज के जो शो रहे उनको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। विलास आर के शो को आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। 10 साल बाद जो चीजें हुई वो पहले हुई। इस मरतबा हवा में, ओ कैच छूटा, सपना टूटा, मुकद्दर रूठा, 2 रन भी आए। थोड़ा झिंझला गए वहाँ पर खिलाड़ी, भूल गए कि सांप गुजर जाने के बाद लकीर पीटने से कुछ नहीं होता है। इस 2 रन की मदद से हम टोटल स्कोर अब देखे भावेश सर तो गुलोचे के 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी अच्छी हो रही है लेकिन थोड़ा सा फील्डिंग में कमजोरी नजर आ रही है जय गांव देवी की। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 15, विकेटें गिरी है 2। यहाँ पर जब अनिल कपूर आए थे तो पूरा पैक क्राउड था और दूर से कहाँ जा रहा था झकास। यहाँ पे जब हालांकि बाबा आए थे, संजय दत्त, उस वक्त तो अद्भुत नज़ारा था। प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी 2016, 15 में अनिल कपूर आए थे प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी। यहाँ पे कर्नल वेंसारकर आए, नीलेश कुलकर्णी आए, यहाँ पे डॉक्टर आसाई आए थे जो फिजियोथेरेपिस्ट रहे हैं इंडिया टीम के। ये देखिए एकता सुपर लीग देखना ना भूलिए, 13 से 17 इसी ग्राउंड पे डॉक्टर गौली सर, शुभात धुमाल, मजहर खान, अजीम अब्दुल्ले और कमेंटेटर सुनील पवार की देन। सर आपका नाम भी शामिल है। गेंदबाजी के लिए गुड्डार्थ, अच्छा नाम है। इस मरतबा टर्न कर दिया पैरों के सामने आउटफील्ड में, 1 रन। 1 रन से उस स्कोर 16 पे पहुंचा। देखिए उस नाम में एक नाम ज़रूर रहता, लेकिन अजय गरत यूरोप चले गए, माल्टा की हवा उन्हें रास नहीं आई, वापस आ गए। अब सीज़न पूरा अजय गरत का इंतज़ार कर रहा है, तो क्रिकेट सीज़न पूरा करके फिर यूरोप की फ़ज़ाओं में जाएंगे। क्या बात है, अजय गरत सर भी हर तरफ मजा लूट रहे हैं। इस मरतबा एज लेकिन निकल गई पीछे, तेज आउटफील्ड है, नॉन स्टॉप बाउंड्री पर 4 रन। बल्ला जोर से घुमाने का ये फायदा रहता है। मोटा एज लगा, विकेट कीपर के लिए मौका नहीं, गेंद ऊपर से निकल गई, 4 रन। बिल्कुल, अक्सर यही कहा जाता है कि जब ऑफसाइड बल्ला आप घुमाए तो को बहुत तेजी से, ताकि एज लगे तो वो तेजी से ट्रैवल करे, मौका ना मिले फील्डर को कैच पकड़ने का। वैसे भी चैलेंज का फाइन लेग और थर्ड मैन का जो इलाका है वो डेथ जोन कहा जाता है। मेयर कप 2003 में दीपक मडवी ने वाइड फेंक दिया, 5 वाइड के रन आए। इस मरतबा मिसक्यू पुल और सीधा शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे, कोई गलती नहीं, रफ्तार में गिरफ्तार किया वहां बल्लेबाज को, क्योंकि टिप्पा खाने के बाद रफ्तार से गेंद चेहरे के पास आई थी। इस बार अतिरिक्त उछाल भी मिला था इस गेंद में, यही कारण था कि सही तरीके से संपर्क नहीं हुआ। देखिए बहुत बड़े हिट के लिए गए थे लेकिन
फिट नहीं हो पाए वहां पर बल्लेबाज यशराज पाटिल। देखिए आजकल क्रिकेट बहुत आधुनिक हुआ है, बहुत जदीद हुआ है, लेकिन मैनुअल को क्रिकेट के हम खोल के देखते हैं तो पुल और हुक शॉट में या तो आप गेंद के पीछे आके खेलना चाहिए या लाइन से हटकर। कट शॉट के लिए आपको जगह चाहिए। यहाँ बहुत दूर से खेला, खमजा उठाना पड़ा। 20 रन 3 विकेट। पिछले मैच के हीरो सुशांत बल्लेबाजी को आए। पिछले मैच में 11 गेंदों में 42 रन बनाए थे। कुमड़पाड़ा लगभग अपने घरेलू मैदान पे खेल रही है, ये देखा जा सकता है। जादुई नगरी हम जिसे कहते हैं प्रियांशी स्टूडियो, वहाँ से कमेंट्री करने में अलग ही मज़ा है, मानो सिटमैक्स के स्टूडियो से हम कर रहे हो। बहुत अच्छी गेंद, गुड लेन पे पड़ने के बाद थोड़ा अतिरिक्त उछाल था, लेग बाय। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन 3 विकेट। बॉल रफ्तार में गिरफ्तार कर लिया। इतनी तेज गेंद थी कि हवा में चकमा खा गए बैट्समैन। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इस तरह के विकेट पैट्रिक पैटरसन ने बहुत लिए। बिल्कुल बाबे सर, विकेटों के फर्नीचर को पूरी तरीके से खुला छोड़ दिया था। देखिए स्टांस इन्होंने पूरा विकेटों को खुला छोड़कर लिया था, उसके बाद और सफल हुए। इतनी तेज तर्रार गेंद आई कि सीधा फर्रार हो गए स्टंप को लेकर। देखिए सबसे बड़ी बात है कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पे जिस कमेंटेटर ने 40 साल तक राज किया था, भारत की बुलंद आवाज़ सुशील दोषी को लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार ने आखिर के 4 दिन मेयर कप 2006 में लाया था। और उस वक्त इतना रश था फाइनल में, एनआर बनाम बी इंडियन। ये देखिए एंजॉयमेंट किया जा रहा है। विशाल पाटिल, महेश भी है वहाँ, और स्लाइस करने की कोशिश, नीचे गेंद रही, बिट किया ऑफ स्टंप के बाहर। 3 ओवर की समाप्ति। टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई रिग्नेश 11 रानाल 21 रन बनाए और 4 विकेटें गिरी है। अच्छा टोटल तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि चैलेंज पे जो ये आप कुमार को देख रहे हैं, गजब के गेंदबाज, दोनों तरफ काटते हैं। मेयर कप 2013 का वो मैच जो बीसीसी और आह्वान के बीच खेला गया था, पहली ओवर में कुमार ने शाहिद खान जो बहुत अच्छे टच में थे उनको कॉट बिहाइंड किया था। – 21 रन 4 विकेट। गेंदबाजी में सनी चौहान, हालांकि बल्लेबाज भी हैं वो अच्छे। सनी चौहान इसी ग्राउंड से वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गवली सर ने भी 2006 में शुरुआत की थी। व्हाट अ बॉल, वाओ, क्या रफ्तार भरी वाइड यॉर्कर थी, बीट करती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। अजय गरत 2014 में जुड़े। वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गवली सर वहीं शो में जुड़े जिसमें सुशील दोषी थे। 1999 में हरीश पंड्या जुड़े। 2016 में मिस्टर आईपीएल कुणाल दत्ते यहाँ से जुड़े। मच्छिंदर पाटिल का भी वो साल था। इस मरतबा बैकफुट पे गए, फोर्स किया बहुत तेज, लॉन्ग ऑफ पे 1 रन। इस सिंगल की मदद से हम टोटल स्कोर देखें तो कुल है 22 लॉस्ट ऑफ 4 विकेट्स। ये देखिए बैकफुट पे जाके बहुत ही जबरदस्त फोर्सिंग स्ट्रोक, लेकिन लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी। सनी ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद वाइड घोषित की अंपायर ने।
एक रन और आता हुआ स्कोर में, स्कोर 23 रन 4 विकेट। ये जो फ्लड लाइट आप देख रहे हैं ये 2000 के नगर अध्यक्ष चषक में लगाई गई थी। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, फिर वाइट। एक रन और आता हुआ स्कोर में, स्कोर सरकता हुआ पहुंचा है 24 रन। आप इमेजिन नहीं करेंगे आज जब ये लाइट लगी थी और पहली मर्तबा जब नगर अध्यक्ष चषक से 2 दिन पहले शुरू की थी टेस्टिंग को, तो ऐसे लग रहा था पूरा भिवंडी इस ग्राउंड में। ये देख सकते हैं आप, वहीं फ्लड लाइट, स्विच हिट, कमाल का शॉट है, गैप में गेंद निकल गई है, बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट के बीच में 4 रन। बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला वहां पर, बल्लेबाज ने देखिए मन बना लिया था, पहले स्विच हिट, वहां पर बैकलिफ्ट को चेंज किया और बहुत गजब का स्ट्रोक गैप में खेला हुआ 4 रनों के लिए। यस, पहले ही मन बना लिया था। इस चौके की मदद से विघ्नेश 11 का स्कोर 28 रन 4 विकेट। अच्छा स्ट्रोक खेला बैट्समैन करण ने, पिछले मैच में भी आते ही सिक्सर लगाया था। साए अब पिच की तरफ बढ़ रहे हैं। सनी, अच्छा ड्राइव, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी हैं, एक रन तेज, दूसरे की कॉल, मना किया वहां पर। एक रन से स्कोर 29 पे पहुंचा है, 29। देखिए प्रिंस मूवीज को क्यों किंग ऑफ टेलीकास्ट कहा जाता है। जिस तरह इंटरनेशनल में कमेंटेटर्स की बात को तुरंत ही स्क्रीन पे दिखाया जाता है। आपने देखा बात फ्लड लाइट की चल रही थी, तुरंत ही दिखाया गया। ओ बढ़िया वाइड यॉर्कर, पैर नहीं चले थे बैट्समैन के, क्रीज बॉक्स से केवल बल्ला फेंक दिया था। जहां पर मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क। देखिए कोमरपाड़ा के गेंदबाजों ने पकड़ के रखा है बल्लेबाजों को। पिछले मैच में तो रनों की बौछार लगाई थी सुशांत ने, और इस मैच में अब तक 4 गेंदों में 1 रन। फिर सुशांत परेशान। ये क्रिकेट है, आप चीजें बदलने में समय नहीं लगता। जिस खिलाड़ी ने 11 गेंद में 42 बनाए, 5 गेंद में 1 रन बनाए, ओवर समाप्त होते हुए 4 कुल स्कोर है, 29 विकेटें गिरी है 4। जब शाम कोई भी टूर्नामेंट की चैलेंज पे ढले तो यादें ताज़ा होती है मेगा इवेंट की। अंपायर क्या पूछ रहे हैं, देखना है कि क्या रिटर्न क्रीज के बाहर जाके गेंद को किया था। तीसरे अंपायर को पूछा गया है। ये देखिए जूम करके दिखाया जा रहा है प्रिंस मूवीज की तरफ से। क्या टेलीकास्ट है, आउटस्टैंडिंग टेलीकास्ट फ्रॉम प्रिंस मूवीज। रवि गुलवी एंड प्रथमेश पाटिल।
एक बार फिर से रिप्ले दिखाने की मांग की अंपायर ने। कमाल का टेलीकास्ट जूमिंग करके बताया जा रहा है, बिल्कुल इंटरनेशनल की तरह। प्रथमेश पाटिल एक बार फिर से दिखाए। ये देखिए अल्ट्रा स्लो मोशन में देखिए, हमने पहले ही बताया था अंपायर के मन में जब भी शंका होंगी वो टीवी अंपायर की मदद ले सकते हैं। देखना है कि आखिरी गेंद पर क्या निर्णय आता है। विशाल पाटिल हमारे वॉकी टॉकी मैन, प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी दस्तक दे रही है, उनका रोल बढ़ जाता है एवन ट्रॉफी में। सर परवीन केडिया का जिस तरह रोल बढ़ जाता है। नो बॉल घोषित किया है क्योंकि जो रिटर्न क्रीज है उसके बाहर गेंद गिरी है। खेल की शुरुआत करना है। ओवर नंबर 4 चल रहा है इस वक्त, आखिरी गेंद है और कुल स्कोर है नो बॉल के 1 रन के साथ 30 रन 4 विकेट। और अगली गेंद फ्री हिट है। देखना है क्या फ्री हिट पर कोई बड़ा हिट देखने को मिलेगा। 30 रन पर स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त रिग्नेश 11 रहनाल का। सनी चौहान इस मरतबा बहुत खूबसूरत शॉट है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ फील्डर है। शॉट तो बहुत दमदार खेल रहे हैं लेकिन प्लेसमेंट नहीं हो रही है। ओवर समाप्त होते हुए 4 कुल स्कोर है, 31 विकेटें गिरी है 4। कल सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का फिर से घमसान रहेगा। 31 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, एंड ऑफ द 4th ओवर। आप देख रहे हैं चुनौती भरा क्रिकेट चैलेंज ट्रॉफी 2023। देखिए अब यहाँ से भाभी सर 2 ओवर का खेल और बचा हुआ है, देखने और कितने रन जुड़ पाती है इस वक्त रिग्नेश 11 रहनाल। 1.5 ओवर का खेल शुरू हो जाएगा। 4 ओवर के लिए ज़्यादा समय लिया गया है, इस बात का ध्यान रहे। कुमारपाड़ा की कैप्टन गेंदबाजी में अब बुलाया गया है गेंदबाज गुद्दार्थ को। हालांकि पहला ओवर बहुत ही कसा हुआ किया, कुल मिलाकर 6 रन दिए, 2 विकेटें ली। बोल्ड कर दिया है, एक और विकेट। अंपायर पे चढ़ दौड़े थे, हालांकि बैट्समैन तो बोल्ड हुए थे। बिल्कुल काफी तेज तर्रार अपील थी वहां पर गेंदबाज की, उन्होंने देखा ही नहीं। जैसे गेंद पैरों से टकराई सीधा अंपायर से सवाल करने लगे, हाउस दैट। अंपायर फारूक बड्डी सर बताते हुए भाई बोल्ड हो गए हैं। ये देखिए रिएक्शन देखिए, बहुत देखने के लायक है। क्रीज के कोने से किया परफेक्ट यॉर्कर, विकेटों के फर्नीचर को बिखेरती भी। अब हम कह सकते हैं कि रिग्नेश 11 ने जहां पिछले मैच में रन फेस्टिवल किया था, रनों के लिए जूझना पड़ रहा है। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं गुद्दार्थ। 31 रन 5 विकेट। क्या खूबसूरत नज़ारा है चैलेंज का। सामने हरी भरी दरख्त नजर आ रहे हैं। गुद्दार्थ चेतन को ऑन साइड में मोड़ा है, फील्डर हैं डीप में, 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32, 5 विकेट। बहुत ही खूबसूरत सामने दरख्तों के झुंड हैं बिल्कुल हमारे सामने। ग्राउंड में भी लगभग 75% हरा सब्जा
हरी घास नजर आ रही है। इस मरतबा फुल पे लेके ड्राइव किया, खिलाड़ी है, खराब फील्डिंग, 4 रन, 1-2 का 4। देखिए फील्डिंग का ये स्तर होना भी नहीं चाहिए। आदमी के पैरों के गेंद के सामने बॉडी का होना जरूरी रहता है, मिले हुए पैर चाहिए। इस चौके ने कहीं मैच तो शुरू नहीं कर दिया रनों को। 36। ये देखिए खराब फील्डिंग, गुद्दार्थ सामना करेंगे बैट्समैन करण। 2 चौके लगा चुके हैं, कुल मिलाकर 9 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस मरतबा खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद कहीं और गई, लेकिन 2 रन बना लिए, छीन के 2 रन लिए। 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन, 5 विकेट। करण अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनको पता है कि कम से कम भले से शाम डर रही है, 60 के करीब जाना होगा। ओ कमाल का शॉट, रिवर्स खेला है, गेंद स्क्वायर इस थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। बिल्कुल बहुत अच्छा स्ट्रोक वहाँ पर खेला भाभी सर। बल्लेबाज करण ने बहुत एंड मोमेंट पर अपने बल्ले को वहाँ पर फेस को चेंज किया, गेंद बल्ले से टकराया और सीधा थर्ड मैन वाइडिश बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई। कोई भी मौका नहीं था किसी फील्डर के पास इस गेंद को रोकने के लिए। कहीं ना कहीं थोड़ी सी मदद भी कर दी गेंदबाज ने, लोअर फुल टॉस गेंद करके करण के काम को आसान किया। गजब का स्ट्रोक, अच्छी बल्लेबाजी अब हो रही है। जो मिसफील्ड पे चौका गया वहां से रन अब आ रहे, 42 रन, 5 विकेट। इस मरतबा फिर पंच किया, लेकिन इस मरतबा रन के लिए गए थे और बैट्समैन तीसरे अंपायर की तरफ अंपायर गए हैं। देखने वहां पर तीसरे अंपायर को कॉल किया है। देखिए आर पाटिल पवेलियन, इनकी बाजू में जो स्टैंड है वहां पर कुछ बच्चे नॉट आउट। ओवर समाप्त होते हुए कुल मिलाकर 5 रन बने हैं। रिग्नेश 11 रानाल के 44 विकेटें गिरी, 5। सामने हरा भरा जंगल है और अजय गरत 43 हुए हैं, 43 42 होना चाहिए हमारे स्कोरर के मुताबिक। सामने जंगल है और किसी ने सच कहा है कि गम के रुत, खुशी के रुत में गम की परछाई अच्छी नहीं लगती, हंसी चेहरे पे ये झुर्रियाँ अच्छी नहीं लगती, मेरी यादें भुला दी अच्छा किया तूने, क्योंकि हरे जंगल में सूखी पत्तियाँ अच्छी नहीं लगती। खेल की शुरुआत होती भी डेथ ओवर में सनी चौहान को कंटिन्यू रखा है। देखना है कि यहाँ से करण कितने रन लेते हैं। चेतन स्ट्राइक पे, ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड से शुरुआत करते हुए सनी 43 पे पहुंचा स्कोर, 43 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। इस मरतबा ब्लाइंड स्विंग बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर, फिर वाइड। शाम सुहानी शाम में आकिब पटेल निज़ामपुरा भी ऑनलाइन हमसे जुड़ चुके हैं। हमेशा अपनी फैमिली के साथ मैच देखना पसंद करते हैं। वेलकम आकिब। मयूर पाटिल और मयूरेश की काफ़ी सराहना की है, थैंक यू एंड वेलकम। इस मरतबा फुल पे लेके मिस टाइम स्ट्रोक है,
लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी पहुंचे, आउट हुए चेतन। विघ्नेश बल्लेबाजी को आए। कितनी गेंदें बची आसिफ डेथ ओवर की? 5 गेंदें बची कुछ करने के लिए। ये देखिए किस तरह से विकेट गिरा। फुल टॉस गेंद को चैलेंज पे सामने मारना मानो गुर्दे जिगर का काम। फिर फुल टॉस गेंद, डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। चैलेंज का लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ एक ऐसा इलाका है जहां पे 9 बैट्समैन आउट होते हैं और 1 बैट्समैन सिक्सर लगाता है। पैंतालीस पे पहुंचा है स्कोर। सनी चौहान फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली, कवर पॉइंट सर्कल में, बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री पे जा चुका है क्योंकि करण रिवर्स शॉट बहुत अच्छा खेलते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर, फिर वाइट। 1 रन और आता हुआ स्कोर में। इस ओवर में काफी भटक रहे हैं अपनी दिशा से सनी। तीसरा वाइट कर चुके हैं। कुल स्कोर 46। अब हल्की ठंडी शाम की हवाएं चलती हुई, मौसम बहुत ही खुशगवार। अभी तक बल्लेबाजों को आज़ादी नहीं दी है कोमरपारा के गेंदबाजों ने। इस मर्तबा स्लॉक कर दिया है सीधा मस्तक पे दस्तक, स्टैंड में 6 रन। मिड विकेट के खिलाड़ी कह रहे हैं लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को कि जो जंप लगाने का आपका समय था उसमें चूक हुई। सर से पानी जाए या गेंद जाए, दोनों चीजें डुबा देती। 52 पे पहुंचा है स्कोर। 50 कमिंग अप। 52 रन, 6 विकेट। अच्छा शॉट खेला था। सनी ऑफ स्टंप के बाहर, चौथा वाइट। 1 रन और आता हुआ 53 पे पहुंचा है स्कोर। इस ओवर में अब तक 3 गेंदें हुई है। बहुत ही लंबा ओवर चलता हुआ। सनी चौहान इस मर्तबा पुल जरूर किया है, पीछे खिलाड़ी है। दिखने में आसान और पकड़ने में मुश्किल कैच। दिखने में तो बहुत आसान था, कॉलिंग भी हुई थी। कैच छूटा वहां पे। रन 2 आते हुए कुल स्कोर 55 रन, 6 विकेट। करण केवल अकेले बैट्समैन है जिन्होंने 2-2 हाथ किए गेंदबाजी से। करण ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। 23 पे खेल रहे। एक फॉरवर्ड 3 पॉइंट लगा दिया गया है। अच्छी गेंद, इस मर्तबा बेहतरीन गेंद, वाइड यॉर्कर। सनी आखिरी गेंद के साथ 55 रन, 6 विकेट। फिर वाइड, 5वां वाइड है। आपको पता है इसी ग्राउंड पे रिकॉर्ड बना है जब उजैर नाचन ने यहाँ पे 16 गेंदों का ओवर किया था, जो टेनिस क्रिकेट का रिकॉर्ड है, मेयर कप में किया था इन 2004। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रिकॉर्ड समी के नाम है, पाकिस्तान के गेंदबाज बांग्लादेश के सामने 17 गेंदों का ओवर। उछाल दिया है कड़क और बेधड़क, स्टैंड में 6 रन। ये जो सिक्सर लगा है ये मैच का कुड बी अ टर्निंग पॉइंट, क्योंकि कुल बन ने 62-63 की चुनौती रखी है
क्या शॉट खेला है, दमदार शॉट, शानदार, जानदार, सीधा आनंद, सीधा आशा पाटिल स्टैंड में जाता हुआ। कल के मैचेस की रूपरेखा मैं आपको देता चलूं। कल सिटी इमर्जिंग रहेगा, ये फ्लड टावर्स आप देख रहे हैं। ठीक 8:45 बजे टीम को रिपोर्ट करना है। 9 बजे पहला मैच रहेगा, हर्षित इंटरप्राइजेस और एमटीसी स्पोर्ट, दूसरा एनके स्पोर्ट और जोहान स्पोर्ट, तीसरा जियान स्पोर्ट्स मापोली, विनर ऑफ फर्स्ट गेम। जार्डिस स्पोर्ट्स का मुकाबला विनर ऑफ सेकेंड गेम। चैलेंज स्पोर्ट और अंजुमन स्पोर्ट मैच ऑफ डे आप देखेंगे। और आखिर में चौथे और पांचवें मैच की विजेता टीम। तो क्या कुछ रहेगा आज की शाम, क्या कोमरपाड़ा के नाम या फिर इग्निश 11 के नाम? आइए दो सुरीली आवाज से हम सुनेंगे सदाबहार कमेंटेटर अजय गरत। दोस्तों, अजय गरत के बारे में एक बात ज़रूर करना चाहूँगा। महाराष्ट्र में एक मात्र कमेंटेटर है जिसको तीनों भाषाओं पे कमांड हासिल है। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज मराठी और नेशनल लैंग्वेज हिंदी। आपके साथ दोनों कमेंटेटर। कल देखना ना भूलिए चुनौती भरा क्रिकेट चैलेंज ट्रॉफी 2023। हमारे बीच प्रताप सेठ के सपूत रिग्नेश पाटिल मौजूद हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आपसे निवेदन है कि आपको वीआईपी मंच पे आना है। धन्यवाद सिद्दीक भावे। तो शाम ढलती हुई यहाँ पर चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर धीरे धीरे परछाइयाँ लंबी होती हुई, साए गहराते हुए, और क्रिकेट जो है वो हमेशा जवा रहा है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है चैलेंज ट्रॉफी 2023 में, जर्नी टू क्वालिफाई फॉर प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी विच इज़ कमिंग सुन। तो आज यहाँ पर शुरुआत हुई है सुबह के सत्र में। पहला ही मैच काफ़ी रोमांचक हाई स्कोरिंग कॉन्टेस्ट हमने देखा। उसके बाद कुछ मैचेस में काफ़ी कम रन भी बने, लेकिन ओवरऑल बड़ा ही दिलचस्प रहा है आज का खेल। और ये आज का अंतिम मैच इस समय आपके सामने, जिसमें शुरुआत उतनी अच्छी नहीं थी बल्लेबाजी करते हुए रिग्नेश 11 की। पहले 4 ओवर में सिर्फ 31 रन बल्लेबाज बना पाए थे, लेकिन आखिर के जो 2 ओवर्स थे, सही मायनों में डेथ ओवर्स, उनमें बढ़िया बल्लेबाजी रही। और आखिर के 2 ओवर्स में भी 31 रन बल्लेबाजों ने बनाए, जिसके चलते 62 रनों तक पहुंची है अपने निर्धारित 6 ओवर्स में रिग्नेश 11 राणाल। और 63 रनों की चुनौती मैच को जीतने के लिए जय गावदेवी कोम्बटपाड़ा के सामने। तो कोम्बटपाड़ा टीम ने बड़ा कारनामा किया पहले ही मैच में इस प्रतियोगिता में, जब उन्होंने 78 रन्स चेस करते हुए बनाए और मैच जीता। इस मैच पर और भी ज़्यादा चर्चा करने के लिए कॉम्बॉक्स में मेरे साथ मौजूद है राकीब अंसारी, जो कि बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ है जहाँ तक सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का सवाल है। और अब ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं। देखिए पहले ही दिन शाम के सत्र में कैसा माहौल बना हुआ है चैलेंज ट्रॉफी में। स्वागत है आपका राकीब। बहुत बहुत शुक्रिया अजय गरत सर। देखिए शाम की बात चल रही है तो 2 लाइन कहना चाहूँगा। तेरे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूँ अगर तुझे बुरा ना लगे। बिल्कुल चुरा सकते हो, हमें कुछ बुरा लगने वाला नहीं है, लेकिन जब आप मैच हार जाते हो तो ज़रूर आपको बुरा लगता है। और चैलेंज के टूर्नामेंट से कोई भी जल्दी बाहर तो नहीं जाना चाहता है। तो यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे बच्चे भी पहुँच चुके हैं मैच का लुत्फ़ उठाने के लिए। और चूँकि जय गावदेवी कोम्बटपाड़ा टीम खेल रही है, जो कि यहाँ की स्थानीय टीम है, तो निश्चित रूप से आप हमेशा उम्मीद करते हैं कि अच्छा खासा सपोर्ट उनको मिले। लेकिन रिग्नेश 11 राणाल ये भी एक ऐसा नाम है जो हम बड़े बड़े प्रतियोगिताओं में भी देखते हैं, और सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में भी रिग्नेश 11। देखिए आपकी मालूमात के लिए बताता चलूँ, ये नाम सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में पहली बार है रिग्नेश 11। इससे पहले ये टीम दूसरे नाम से खेल रही थी। पिछले 1.5 सालों में इन्होंने 4 नाम बदले हैं। आज काम बदलने की बारी है, क्योंकि ये टूर्नामेंट कोई मामूली टूर्नामेंट नहीं है। इस टूर्नामेंट से आपका प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी का टिकट तय होने वाला है।
प्रारंभिक बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं ऋतिक और उनके साथ भूमेश। 6 ओवर में 63 की चुनौती। पहला ओवर लेकर सोहम पाटिल। पहली गेंद और पहली गेंद को खींचा है ऑन साइड में, फील्डर वहां पर है, कोई गलती नहीं। सनसनीखेज शुरुआत इस पारी की। पहली गेंद पर करारा झटका। इस वक्त पहला झटका लग चुका है। अगर हम बात करें जय गांव देवी कुंभड़ पाड़ा को, बहुत बड़ा झटका, बहुत सस्ते में आउट हो गए बल्लेबाज। पहली गेंद पर विकेट गिरा है गोल्डन डक और इस वक्त निकलेश शेलार की तलवार ने ऑल द बेस्ट कहा है। रिग्नेश 11 को आज मौजूद नहीं है, वो भी इसी टीम का हिस्सा है। ऑल इज वेल चलता हुआ हैदर सैयद भी हमें नजर आ रहे हैं, स्टैंड में मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। साथ ही साथ महेंद्र बिरडिया हैं, मुकेश राठौड़ भी मौजूद हैं। काफ़ी दर्शक आए हैं इस वक्त मैच का आनंद उठाने के लिए। पहली गेंद 63 की चुनौती और पहली गेंद पर आपने छक्का लगाने का प्रयास किया जिसमें आप विफल हो चुके हो, तो ऋतिक ने निराश किया। पहली गेंद पर जब विकेट गिरता है तो निश्चित रूप से जो आने वाले बल्लेबाज होते हैं उन पर थोड़ा दबाव बन जाता है। नए बैट्समैन आए हैं किरण तोड़कर। वैसे टेनिस क्रिकेट में पप्पू तोड़कर बहुत ही फेमस है, ये किरण तोड़कर कैसी तोड़फोड़ कर सकते हैं ये देखने वाली बात है। बढ़िया गेंद, इस बार सामने की तरफ खेलने का प्रयास था, संभवतः बीट हुए बैट्समैन। अच्छी शुरुआत सोहम पाटिल की। सोहम के लिए पिछला मैच जो है उसमें हम देखें तो शुरुआत उनकी खराब रही थी, लेकिन फिर दूसरे ओवर में उन्होंने अच्छी वापसी करके दिखाई थी। और सोहम यदि चलते हैं तो फिर विपक्षी टीम का चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ इस तरह के ये गेंदबाज है। रिवर्स खेलने की कोशिश, विकेट कीपर अपील करते हुए, लेकिन कोई संपर्क शायद बना भी था तो बाउंस पर मेरे ख्याल से गेंद विकेट कीपर के पास पहुंची थी। अपील को ठुकराते हुए अंपायर फारूक बर्डी। तो खाता अभी तक खुला नहीं है। और शाम के जो मैचेस होते हैं अक्सर हमने देखा है कि बहुत बड़े स्कोर नहीं बनते हैं, कई बार लो स्कोरिंग मैचेस भी हुए हैं, वो भी बहुत रोचक हुए हैं चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। ये इतिहास है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड का। इस मैच में स्कोर भी अच्छा बनाया गया है, हवा में खेला, फील्डर थोड़े दूर है, बढ़िया फील्डिंग वहाँ पर। पहला रन इस पारी में। खाता खुला है चौथी गेंद पर। बिल्कुल, अब जाकर टीम का खाता खुला है। आप सोच सकते हैं पहले ओवर का खेल चल रहा है, चौथी गेंद पर खाता खुला है, जबकि ये कोई 20 और ओडीआई फॉर्मेट नहीं, 6 ओवर का मैच है। पहली गेंद से बड़े हिट की तरफ जाती हैं टीमें। अभी तक अच्छी गेंदबाजी सोहम पाटिल की। जी हाँ, काबिले तारीफ गेंदबाजी। इस बार थोड़ी डीप होकर आती हुई गेंद थी, ऑन साइड में खेलने का प्रयास। बांध कर रखा है बल्लेबाजों को सोहम पाटिल ने। इनके 2 ओवर्स काफ़ी महत्वपूर्ण है रिग्नेश 11 के लिए। आखिरी गेंद लेकर इस ओवर की सोहम। इस बार हवा में उठा के खेल दिया है, सामने की तरफ लॉन्ग ऑफ से फील्डर दौड़ते हुए, लेकिन कैच नहीं कर पाए। ये बड़ा ही मुश्किल अवसर था। बाल बाल बच गए वहां पर बल्लेबाज भूमेश। 2 रनों से उनका खाता खुलता हुआ और इसके साथ ही पहले ओवर की समाप्ति। जय गावदेवी कोम्बड़पाड़ा 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल, हम अच्छा स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं कह सकते क्योंकि सिर्फ 3 रन बने हैं। टारगेट अगर हम देखें तो 63 का है, 1 विकेट भी गिर चुका है और पूरी तरीके से अभी तक रन गति पर ब्रेक लगाया है। इस वक्त हम बात करें रिग्नेश 11 ने गजब की गेंदबाजी। मैंने पहले ही कहा था कि अजय घरत सर, सोहम पाटिल जिनके पास काफ़ी रफ्तार है और बहुत अच्छा यॉर्कर गेंदों का वो इस्तेमाल करते हैं। ये विकेट भी नहीं आए, पहले थोड़ा ओवर उनके समझ में नहीं आया विकेट को समझने में, उसके बाद समझने के बाद बहुत अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं सोहम पाटिल की। जी हाँ, वो पहला ओवर उनका हम निकाल दे पिछले मैच का, उसके बाद अच्छे से जाना है, पहचाना है, इस विकेट को भाप लिया है और ख़ासतौर पर लाइन ऑफ अटैक बहुत बढ़िया उनका देखने को मिला इस ओवर में। ऑफ स्टंप के बाहर ज़्यादातर खिलाने की कोशिश की और सफल साबित हुए अपने प्रयास में। नया ओवर लेकर गेंदबाज राहुल तरे तैयार होते हुए। आक्रमण काफ़ी अच्छा है, आक्रमण में धार है रिग्नेश 11 के। तो दूसरी तरफ कोम्बड़पाड़ा टीम के पास भी ऐसे बल्लेबाज है जो इस धार को कम कर सकते हैं। ओ डायरेक्ट हिट, सटीक निशाना विकेट कीपर सुशांत का और बैट्समैन रन आउट। बिल्कुल, क्या गजब का वहां पर सटीक निशाना लगाया सुशांत ने
आज तो मानो सुशांत शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बल्लेबाजी, फील्डिंग, विकेट कीपिंग, सब कुछ में कमाल मचा रहे हैं, धमाल। अभी तक सुशांत गजब का परफॉर्मेंस है। रिग्नेश 11 का आज पहले मैच से हावी होती हुई नजर आई है, बताते हुए नाम बदला है लेकिन काम वही है। देखिए, शरीर से दूर धकेलने की कोशिश की थी उस गेंद को, बड़े ऑकवर्ड तरीके से खेलने का प्रयास किया था। गेंद तो बल्ले पर नहीं ले पाए थे, शरीर से टकराई थी, फिर सिंगल चुराने की चेष्टा की गई और उसमें नाकामयाब होते हुए बल्लेबाज किरण तो तोड़कर कुछ खास योगदान दे ही नहीं पाए। एक ही रन बनाया उन्होंने। नाजुक स्थिति शुरुआत में ही इस रनचेज में जय गावदेवी कोम्बडपाड़ा टीम की 3 रनों पर गिरा है दूसरा विकेट। अजय गरज सर अभी हमसे जुड़े हैं। फरहाद कल देर रात मेरे साथ वो कमेंट्री कर रहे थे और आखिरी मोमेंट पर मेरा साथ छोड़कर चले गए थे। आइए फरहाद, आपका भी स्वागत है चैलेंज ट्रॉफी 2023 में। नए बल्लेबाज सनी अच्छा खेले थे पहले मैच में। नीचे रहती हुई गेंद, कहीं ना कहीं जो बैट्समैन उम्मीद कर रहे थे उतना उछाल नहीं था और गेंद आपके उम्मीद के मुताबिक ऊपर ना उठे तो फिर अक्रॉस द लाइन खेलना खासतौर पर बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार आप सीधे बल्ले से खेलोगे तो निश्चित रूप से चांसेस होते हैं कि गेंद बल्ले पर आए, लेकिन अक्रॉस द लाइन खेलते वक्त मुश्किल रहता है गेंद को बल्ले पर लेना। जिस तरह से शुरुआत की सोहम ने, उसी तरह से गेंदबाजी अब राहुल करते हुए। इस बार थोड़ी जगह ज़रूर दी थी लेकिन इस बार गति नहीं थी गेंद में ज़्यादा। किसी तरह से खेला उसको बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट। 1 रन। रन संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई कोम्बडपाड़ा टीम की 4 रन 2 विकेटों के नुकसान पर और 59 रन यहाँ से चाहिए। दिल्ली तो अभी बहुत दूर नज़र आ रही है। बिल्कुल रन बंदी देखने को मिल रहा है इस वक्त। अजय गरज सर दूसरे ओवर का खेल चल रहा है, रन बने हैं सिर्फ 4। अब यहाँ पर जय गांव देवी को कुछ करना होगा विचार, नहीं तो फिर बहुत देर हो जाएगी। स्ट्राइक सनी के पास और जबरदस्त स्ट्रोक फ्लिक किया केवल और 6 रन। इस पर क्या गजब का हिट लगाया है, गेंद नजर नहीं आई कि कब फर से फुर हो गई। रिप्ले में देखना होगा। सनी चौहान का गजब का हिट, लोकल बॉय है इसीलिए इतना हर्षोल्लास हो रहा है। ओहो, लेग स्टंप पर रखा था गेंद, फुल टॉस, अच्छा फ्लिक स्ट्रोक, गेंद सीधा आउट ऑफ द पार्क। 6 रन। एफर्टलेस, कम से कम प्रयास और ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम हासिल करते हुए सनी पहली गेंद का सामना करते हुए छक्का जड़ाया उन्होंने। पहले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे। 27 रनों की धुआंधार पारी खेली थी जब 78 रनों का पीछा करना था टीम को। तो ये की फैक्टर है, एक्स फैक्टर है मैं समझता हूँ सनी। रन संख्या दोहरे अंकों में 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यॉर्कर की कोशिश कहीं ना कहीं वहाँ पर गेंदबाज राहुल तरे द्वारा, और यॉर्कर गेंद में यही तो एक दुश्वारी रहती है बॉलर के लिए कि आप थोड़ा सा भी लेंथ से भटक जाते हो, थोड़ा आगे करते हो या फिर हल्का सा पीछे करते हो। आगे करते हो तो इस तरह से फुल टॉस हो सकती है, पीछे हल्का सा चली जाए तो फिर ओवर पिच हो जाती है, ऑफ वाली हो जाती है, फिर उस पर बड़ा शॉट खेलना बैट्समैन के लिए आसान होता है। तो मार्जिन फॉर एरर बहुत कम है यॉर्कर डालने में, सटीकता आपके पास होनी चाहिए। पूरा दारोमदार यहाँ से रहेगा सनी और भूमेश के कंधों पर, जहाँ तक जय गावदेवी कोम्बडपाड़ा टीम का सवाल है। आज कुल मिलाकर 5 मैचेस, इससे पहले 4 मैच कवर कर चुके हैं हम और यह आज का अंतिम मैच है। कल दूसरा दिन रहेगा, ठीक सुबह 9 बजे खेल की शुरुआत होगी। ये अच्छी लेंथ है, इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद जा रही है ऑफ साइड में, 1 रन मिलेगा। लेग बाइस का इशारा करते हुए अंपायर धनंजय कोहली। एक गेंद अभी भी बची हुई है राहुल के इस ओवर में। यदि वो फुल टॉस गेंद हम निकाल दे तो बहुत अच्छा ओवर किया है राहुल ने। बिल्कुल, इस गेंद को खेला कहीं था, गेंद गई कहीं पैरों से टकराने के बाद, लेकिन 1 रन वहाँ पर दौड़ के पूरा किया लेग बाय की शक्ल में और स्कोर अब जाकर थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हमें। 1 और 1 11, एक जो सिक्सर लगाया था उससे कहीं ना कहीं वापसी की उम्मीद नजर आई है जय गावदेवी के खेमे में। इस बार तेज तर्रार गेंद, अपील शायद करने का प्रयास, लेकिन यहाँ पर वाइड है। अंपायर ने गेंद को वाइड घोषित कर दिया है। हालांकि बैट्समैन ने छेड़खानी करने की कोशिश की थी, बहुत दूर से बल्ला चला बैठे थे। स्कोर में इजाफा, स्कोर अब 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बल्लेबाजी में जब आप चेस करने के लिए आते हो तो देखिए, 2 बल्लेबाज थोड़ा वक्त यदि गुजारते हैं क्रीज पर तो
फिर चीज़ें अलग लगने लगती है। भले ही आपकी टीम शुरुआत में बैकफुट पर हो, लेकिन जब पार्टनरशिप बनती है तो गेंदबाजी करने वाली टीम के खेमे में खलबली मच जाती है। एक और वाइड, लगातार दूसरी वाइड गेंद, और इस मैच में काफ़ी वाइड गेंदें हमने देखी है ऑलरेडी। खासतौर पर सनी ने काफ़ी अतिरिक्त रन खर्च किए थे जब वो गेंदबाजी कर रहे थे। बिल्कुल न, देखिए राहुल तरह गेंदबाजी पहले कर रहे थे, बहुत टाइट, अब एक के बाद एक कर रहे हैं वाइड। इस बार फ्लिक करना चाहते थे, अब की बार लेग स्टंप के बाहर भटक गए हैं। लगातार तीसरी वाइड गेंद, इसे बचना होगा। इस तरह के फिजूल के रन्स आप खर्च करोगे तो फिर आपकी टीम के लिए दिक्कत निश्चित रूप से आएगी। स्कोर अब 14 रनों पर पहुंच चुका है। पहले ऑफ साइड में 2 वाइड गेंदें, उसके बाद लेग स्टंप के बाहर वाइड गेंद। आखिरी गेंद है इस ओवर की, लेकिन उसको करने के चक्कर में 3 वाइड गेंदें कर चुके हैं। अब की बार बेहतर एग्जीक्यूशन, ऑलमोस्ट यॉर्कर लेन पर, लेकिन उतना ही खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव, सिंगल अंतिम गेंद पर, और इसके साथ ही 2 ओवर का खेल पूरा होता हुआ। तो 63 रनों का पीछा यहाँ पर जारी है कुंभड़पाड़ा टीम द्वारा। स्कोर हुआ है 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बिल्कुल 2 ओवर के बाद कुल रन बन चुके हैं 15-15। कहीं ना कहीं वापसी के संकेत नजर आ गए हैं अब जयगांव देवी कुंभड़पाड़ा को, क्योंकि सनी ने जो वो बड़ा हिट लगाया था उससे कहीं ना कहीं हलचल मच गई है। रिग्नेश 11 रहना थी, सनी को मिली, कहीं ना कहीं वो तिनके का सहारा बन सकती है अब जयगांव देवी के लिए, क्योंकि अब पूरी तरह से वापसी कर चुकी है। 19 रन बन चुके हैं, तीसरे ओवर का खेल है, और अब बल्लेबाजी में भी उनके पास 8 विकेट हाथ में मौजूद है। गजब का प्लेसमेंट, लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से गेंद को बाउंड्री के बाहर निकाला, और इस बार थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद। और अब की बार जो स्ट्रोक सिलेक्शन हमें देखने को मिला वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास। भूमेश है इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर, 6 पर बैटिंग करते हुए, सनी भी 6 पर खेल रहे हैं। पेस परिवर्तन अच्छा करते हैं सोहम बीच बीच में। लो फुल टॉस, मिस्टाइम स्ट्रोक, और गेंदबाज गेंद के नीचे, भूमेश का काम तमाम। पहली गेंद पर चौका, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी सोहम पाटिल की। तीसरा विकेट गवा दिया है जयगांव देवी कुंभड़पाड़ा टीम ने, 19 पर 3। बिल्कुल एक और बहुत बड़ा झटका, हमारे कहने की देरी थी कि वापसी का ऐलान हो रहा है, एक और झटका लग गया। अब फिर थोड़ा सा दबाव बनेगा कहीं ना कहीं जयगांव देवी कुंभड़पाड़ा के ऊपर, क्योंकि आउट होकर बल्लेबाज भूमेश पवेलियन की तरफ लौट रहे हैं। देखना है बल्लेबाजी के लिए कौन आ रहे हैं जिनके लिए इतना शोर उमड़ रहा है। क्या हार्ड हिटर बल्लेबाजी कर पाएंगे? साई, अब इनसे उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा है दर्शकों को। मिस टाइम स्ट्रोक था, गेंद हवा में थी, वहाँ पर अपने फॉलो थ्रू में इस कैच को अंजाम किया। सोहम पाटिल ने एक अच्छा कैच पकड़ा, उन्होंने तीसरा झटका लगता हुआ जयगांव देवी कुंभड़पाड़ा को। अब अभी जीत के लिए यहाँ से जो रन चाहिए वो अभी भी हम देखें तो 44 हैं। काफ़ी सारे 4 लगाने होंगे अगर मैच को जीतना है तो जयगांव देवी को। काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ से बल्लेबाजों को, मेहनत मशक्क़त करनी होगी, संघर्ष करना होगा, क्योंकि डगर थोड़ी मुश्किल लग रही है। साई तगड़े बल्लेबाज हैं और दर्शक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि साई तगड़े शॉट्स भी खेलेंगे। और बढ़िया गेंद इस बार आगे रखी हुई गेंद थी, देखना बैट से लगी या नहीं, जहाँ बल्ले से लगती हुई गेंद ये सिंगल। जी बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा क्या साई मचाएंगे तबाही, क्योंकि काफ़ी लोगों ने उनके लिए की है घाई। क्षमता तो रखते हैं, मिडिल ऑर्डर में आए हैं बल्लेबाजी के लिए 5वें नंबर पर, लेकिन जिस तरह से विकेटें गिर रही है वो विकेट्स गिरने का सिलसिला भी थोड़ा चिंता का विषय है। बढ़िया गेंदबाजी, यॉर्कर लेन पर ऑफ स्टंप के बाहर, और अच्छा पेस, ये उनकी ताकत हमेशा रही है। देखिए वाइड यॉर्कर, बल्लेबाज के पैर भी कुछ खास हिले नहीं थे, फुटवर्क का अभाव था। अच्छा कॉन्टेस्ट है हालांकि ये, सनी भी अच्छे बल्लेबाज है और सामने सोहम, 2 युवा टैलेंटेड खिलाड़ी। ओह फुल टॉस, शरीर पर टकराई है। सनी काफ़ी निराश, जानते हैं कि उन्होंने यहाँ पर 6 मिस किया है। अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह की गेंदों को वो मैदान के बाहर भेज देते हैं,
लेकिन इस बार चूक गए और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ है 20 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बिल्कुल, ये देखिए जूजी फुल टॉस, बल्ला थोड़ा सा पहले चलाया, वहां पर गेंद बाद में आई, काफी जल्दबाजी कर बैठे वहां पर सनी चौहान, नहीं लगा पाए इस गेंद पर कोई बड़ा हिट। 3 ओवर का खेल हुआ खत्म, रन बने सिर्फ 20 और विकेटें गिरी है 3। अभी तक का बहुत टेलीकास्ट है प्रिंस मूवीज का क्लीन। देखना अब यहाँ से आगे और किस तरह बल्लेबाजी करती है जयगांव देवी कुंभड़पाड़ा, और क्या इसी तरह की अच्छी गेंदबाजी बरकरार रखेगी विघ्नेश 11 रहनाल। इनके पास अभी भी गेंदबाजी के ऑप्शन मौजूद है। राहुल तरे हैं, करण की गेंदबाजी बाकी है, चेतन की गेंदबाजी बाकी है, गणेश पाटिल की गेंदबाजी बाकी है। आज अभी तक चेतन ने एक भी ओवर नहीं किया है, ये बहुत दिलचस्प चीज है। आक्रमण बहुत ज़बरदस्त है और इसीलिए शायद उनकी ज़रूरत भी महसूस नहीं हो रही है। राहुल तरे आक्रमण जारी रखते हुए इस बार शॉर्ट आर्म पुल, कुछ खास टाइमिंग देखने को नहीं मिली, एक ही रन मिलेगा। काफ़ी देर गेंद हवा में भी रही थी लेकिन फील्डर जो है वो बाउंड्री पर है, ऑन साइड में, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, सर्कल के थोड़ी बाहर जाकर गिरी थी गेंद। 1 रन से स्कोर अब 21 रनों पर पहुंचता हुआ और 42 रन चाहिए, मात्र 17 गेंदें शेष है। राकिब पहले 3 ओवर्स में सिर्फ 2 बाउंड्रीज आई है, एक चौका और एक छक्का। तो अब बचे हुए जो 3 ओवर्स है उसमें मुझे लगता है वो नंबर्स को बढ़ाना होगा। प्रयास जारी, लेकिन इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, फील्डर लॉन्ग ऑन से आते हुए और लपक लिया है कैच। ये बड़ी सफलता सनी, जो खतरनाक साबित हो सकते थे पेविलियन की राह पर। बिल्कुल, यहाँ पर कोई भी गलती नहीं की, वहाँ पर यशराज पाटिल ने गेंद के नीचे अच्छा कैच पकड़ा, उन्होंने मिस टाइम स्ट्रोक था, लॉन्ग ऑन जैसे इलाके को क्लियर करने की कोशिश थी वहाँ पर। ये देखिए स्लॉट में गेंद थी लेकिन लाभ नहीं उठा पाए, वहाँ पर सनी काफ़ी बाहर से इस गेंद को खींचा था उन्होंने मिस टाइम स्ट्रोक को, और अब आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए नए बल्लेबाज आ रहे हैं। जोरम, अभी नहीं कुछ जोर दिखाना होगा अपनी टीम के लिए। पिछले मैच में भी अच्छे तरीके से गेम को फिनिश किया था, फिर से इन्हें अब एक फिनिशर की पारी खेलनी होगी वरना टीम की नैया किनारे पे आकर डूब जाएगी। मोमेंटम कहीं ना कहीं यहाँ पर हम देखें तो गेंदबाजों के पास नज़र आ रहा है और शुरुआत से ही सोहम ने अच्छी शुरुआत की और उनको अच्छा साथ देते हुए राहुल, हालांकि राहुल का जो पहला ओवर था उसमें शुरुआत अच्छी, फिर आखिर की जो कुछ गेंदें थी उस पर उन्होंने 3 वाइड गेंदें की थी, एक बड़ा हिट भी आया था, लेकिन ओवरऑल बड़ी अच्छी गेंदबाजी रही है दोनों भी गेंदबाजों की। सोहम पाटिल अपना कोटा समाप्त कर चुके हैं। जरम नए बैट्समैन, उनके पास स्ट्राइक, फ्लिक किया, टाइमिंग अच्छी है लेकिन फील्डर मौजूद, ओहो कैच ड्रॉप और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन मिलेंगे यहाँ पर जोरम को। बिल्कुल, वहां पर मौका भी दिया और चौका भी, कहीं जोरम उन्हें चौका ना दे, ये कैच बहुत महंगा पड़ सकता है अजय गहरा सर, क्योंकि जोरम के पास वो जोर है जहां पर वो गेंदबाजों को तोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस जज, काफी ज्यादा आगे चले गए थे फील्डर गणेश तौड़े, यही कारण था कि उनसे मिस जज हुआ और गेंद सीधा 1 बाउंस इनटू द फैन, 4 रनों के लिए। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है इस कैच की विघ्नेश 11 रहनाल को। जैसे कि इससे पहले वाले मैच में हमने देखा था सुशांत का जो कैच 0 पर छूटा था, उसके बाद 42 रनों की शानदार पारी खेली थी उन्होंने, लेकिन इस बार गेंद डंडे पर जाकर टकराई है। पिछली गेंद पर मौका जरूर मिला जोरम को लेकिन कोई भी फायदा उसका नहीं उठा पाए जोरम। और क्या कमाल की गेंदबाजी राहुल तरे की, 5वें विकेट का पतन, स्कोर केवल 25 रन। ये देखिए वहां पर गजब की गेंद की थी, राहुल तरे ने काफी आगे रखा था, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद विकेटों से टकराई, बहुत तेजी से बल्ला चलाया था वहां पर, बिल्कुल भी टाइमिंग या फिर गेंद की लाइन में नहीं आए थे, खड़े खड़े इस स्ट्रोक को खेला, यही कारण था कि वहां पर प्ले डाउन हो गए जोरम। राहुल थले बोल्ड करने के बाद गणेश से बताते हुए कि कैच पकड़ो भाई, बार बार तो मैं बोल्ड नहीं करूंगा अगली गेंद पर। यह कैचेस पकड़ना बहुत ही ज़रूरी, और यह एक ऐसा कंपटीशन है, यहाँ पर आपको आपके खेल में लगातार सुधार करना होगा क्योंकि आने वाली चुनौतियाँ और बड़ी होने वाली है। विकेट का पतन हुआ है। एक नज़र डाल लेते हैं कल के मैचेस पर। कल का पहला मैच हर्षित एंटरप्राइजेस और एमटीसी स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा, सिटी इमर्जिंग का मुकाबला, और ठीक 8:45 बजे सुबह दोनों भी टीमों को यहाँ पर चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर रिपोर्ट करना है। ऐसे बीच अगली गेंद, करारा स्ट्रोक, इस बार खोद कर निकालना पड़ा है गेंद को।
एक ही रन लेने का मौका। कई बार अच्छे शॉट्स आप खेलते हो लेकिन आपको ज़्यादा रन्स नहीं मिलते हैं। सिंगल से खाता खुला है बुद्धार्थ का। बुद्धार्थ एक अच्छे ऑलराउंडर है, गेंदबाजी हमने देखा है उन्होंने प्रभावित किया अपनी गेंदबाजी से, लेकिन अब बल्ले से जौहर दिखाने की आवश्यकता है। टीम को ज़रूरत है एक तेज तर्रार पारी की। इस बार थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर जाकर गेंद को फ्लिक कर दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। एक ही रन मिलेगा साई को और इसके साथ ही एक और अच्छा ओवर समाप्त होता हुआ। 4 ओवर का खेल पूरा हुआ। खोम्बटपाड़ा टीम कहीं ना कहीं थोड़ी बैकफुट पर नजर आ रही है। रन संख्या 27, 5 विकेटों के नुकसान पर और बचे हुए 2 ओवर्स में 36 रनों की जरूरत है। बिल्कुल 12 गेंदे जीत के लिए रन चाहिए। 36, 36, 36 का आंकड़ा अब दोनों टीमों के बीच में देखना है, इस आंकड़े को कौन पार करेगा। आइए हम कल के मैचेस की सूची देख लेते हैं। पहला मुकाबला ठीक 9 बजे मैच की शुरुआत हो जाएगी। दोनों टीमें बिल्कुल तैयार रहना है। हर्षित इंटरप्राइजेस और MTC स्पोर्ट। उसके बाद हम देखेंगे NK स्पोर्ट्स वर्सेस जोहान स्पोर्ट, जिसका पिछला साल बहुत अच्छा रहा था। अजय गरज सर, जोहान स्पोर्ट एक बार फिर एक्शन में नजर आएगी। और एक और नई टीम जियान स्पोर्ट महापोली 2-2 हाथ करेगी पहले मैच की विजेता टीम से। उसके बाद हम देखेंगे क्या युवा खिलाड़ियों से लबरेज जारलेस स्पोर्ट दूसरे मैच की विजेता टीम से। और 5वां मुकाबला मैच ऑफ द डे सिटी इमर्जिंग क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी चैलेंज स्पोर्ट बनाम अंजुमन स्पोर्ट। पिछले साल 2 दफा मेगा फाइनल में दोनों टीमें टकराई थी। अंजुमन ने शिकस्त दी थी चैलेंज को, 2 मेगा फाइनल के हार का बदला है। देखने क्या पूरा होगा कल पहले ही मैच में। और फिर आखिरी मुकाबला हम देखेंगे तीसरे मैच की विजेता टीम चौथे मैच की विजेता टीम से टकराएगी। तो ये कल की रूपरेखा लेखा जोखा। खेलने वाली सभी टीमें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको टाइम पर पहुंचना है, समय का ख्याल रखना है, कोऑपरेट करना है, क्योंकि देखिए वक्त बहुत कीमती है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, हमें रुकना पड़ता है वक्त के लिए। जी हाँ, वक्त आता है चला जाता है, समय का ख्याल रखिए प्लीज़। खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है। अंतिम 12 गेंदे, रोमांच है अभी भी खेल में। 5 विकेट्स शेष है और साई बुद्धार्थ की जोड़ी इस समय क्रीज पर। जय गावदेवी कोम्बटपाड़ा टीम की ओर से 36 रन चाहिए। 18 रन आस्किंग रेट। काउंटर अटैक करना होगा राकिब। 2-3 बड़े शॉट्स आएंगे, खासतौर पर अब ये जो ओवर शुरू होने जा रहा है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण ओवर है। गणेश पाटिल के हाथ में है गेंद। देखिए वक्त ज़्यादा लिया जा रहा है। राणा टीम के कैप्टन इस बात का ख्याल रखें। बिल्कुल भी टाइम नहीं कर पाए और एक आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। साई भी यहाँ पर आउट होकर लौटते हुए पेविलियन की राह पर। बल्लेबाजों ने जब जब कोशिश की है असफल हुए हैं। देखिए रिग्नेश 11 प्लीज बार बार मुबारकबाद नहीं देना है। गणेश पाटिल की शादी को थोड़ा सा अभी भी वक्त है, थोड़ा सा वक्त का ख्याल रखना है प्लीज। जल्द से जल्द दोबारा खेल की शुरुआत करना है। एक और झटका लग चुका अगर हम देखें जय गावदेवी को। इस वक्त साई भी आउट होकर पवेलियन की तरफ लौट चुके हैं। एक के बाद एक बल्लेबाज डगआउट की तरफ जा रहे हैं। किसी ना किसी को मोर्चा संभालना होगा। 11 गेंद में 36 रन। ऐसे लगता है कि ठीक तरह से प्लान नहीं कर पाए बल्लेबाज इस रन चेस को, जिस वजह से इस मैच में अभी तक पिछड़ी हुई है जय गावदेवी कोम्बटपाड़ा। नंबर 8 पर बल्लेबाज पवन। फ्रंट फुट पर आकर अच्छा ड्राइव, एक आलीशान कवर ड्राइव, लेकिन डीप में प्रोटेक्शन मौजूद जिसके चलते मिला है केवल सिंगल। और सिंगल से तो लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता है। स्कोरबोर्ड को आप आगे बढ़ाओगे, स्कोर चलता रहेगा, लेकिन मैच जीतना है तो कुछ बड़े हिट्स अब लाजमी हो चुके हैं जय गावदेवी कोम्बटपाड़ा टीम के लिए। बिल्कुल 10 गेंदों में अब यहाँ से जीत के लिए 35 रन चाहिए। काफ़ी मुश्किल होता हुआ। इस बार तेज तर्रार स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद है। एक ही रन आता हुआ, एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। बाउंड्रीज ढूंढनी होंगी यहाँ पर बल्लेबाजों को। कोशिशरत है
लेकिन सही दिशा में कोशिश रही नहीं है। और जिस तरह से जो विकेट्स गिरे एक के बाद एक, उसके चलते कहीं ना कहीं पीछे है इस मैच में। कोम्बटपाड़ा क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, थोड़ी आगे रखी हुई गेंद थी, बल्ले का एज लगा और 1 रन केवल मिलेगा यहाँ पर। अच्छी गेंदबाजी, सभी गेंदबाजों ने प्रभावशाली गेंदबाजी की है। अच्छा बॉलिंग यूनिट नज़र आ रहा है रिग्नेश 11 का। रन संख्या इस समय 30, 6 विकेटों के नुकसान पर 8 गेंदें शेष। कोम्बटपाड़ा टीम को अभी भी चाहिए 33 रन। लक्ष्य दिल्ली और देहरादून की तरह दूर नजर आता हुआ, और लक्ष्य जब दूर हो तो गेंदों को भी दूर भेजना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर हम देखें तो सिक्सर सिर्फ एक ही देखने को मिला है अभी तक इस पूरे इनिंग में। और डॉट बॉल का जो परसेंटेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहा है। डॉट गेंदें काफ़ी खेली है बल्लेबाजों ने। ये लीजिए एक और डॉट गेंद। और इसी बीच माननीय श्री विजू ठाकरे साहब का शुभागमन होता हुआ आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैलेंज स्पोर्ट्स क्लब के फाउंडर मेंबर। चैलेंज ट्रॉफी 2023 में विजू ठाकरे सर आपका हार्दिक स्वागत। 7 गेंदें और 33 रन। अब की बार बल्ले पर लिया लेकिन गेंदबाज से दूर नहीं खेल पाए, फिर से कोई रन नहीं। एक और डॉट गेंद और इसके साथ ही ये शानदार ओवर समाप्त होता हुआ गणेश का। 5 ओवर के पश्चात स्कोर केवल 30 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। तो 5 ओवर में जितने रन्स नहीं बना पाए हैं उतने रन अब चाहिए, जितने बने हैं उससे ज़्यादा चाहिए। आखिरी ओवर में 33 रन। बिल्कुल, देखिए 30 गेंदों में 30 रन बनाए, जितने बनाए अब उसके भी, और 1 ओवर में बनाने जितने 5 ओवर में बने 30, उससे भी ज़्यादा 33 रन अब उन्हें 1 ओवर में बनाने हैं। अगर इस मैच को जीतना है तो काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। 6 बड़े हिट लगाने होंगे, वो भी एक के बाद एक, सारे मैक्सिमम। बाउंड्री भी लगाएंगे तो लक्ष्य को पार नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छी वापसी रही है सही मायनों में इस मैच में। रिग्नेश 11 रानाल टीम के हम देखें तो बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत में लड़खड़ाए थे। 4 ओवर में जब 31 रन बने थे तब ऐसे लग रहा था कि कोम्बटपाड़ा टीम जो है वो कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रही है विपक्षी टीम को। लेकिन फिर आखिर के 2 ओवर्स जिसमें अच्छी बल्लेबाजी रही और कुछ गेंदबाजों की गलतियां भी थी, जहां हमने देखा कि सनी ने काफ़ी वाइड गेंदें भी की थी। आखिरी ओवर में लंबा चला था उनका अंतिम ओवर, तो 62 तक टीम पहुंची। और शाम के सत्र में यहाँ पर 6 ओवर में 60+ चेस करना कभी भी आसान नहीं है। गणेश नए गेंदबाज वाइड के साथ शुरुआत करते हुए 6 गेंदों में अब 32 रन चाहिए। देखिए अजय गहरत सर, वो पारी खेलनी होगी जो कोलकाता नाइट राइडर के सामने रिंकू सिंह ने खेली थी गुजरात टाइटंस के लिए। आखिरी 5 गेंदों में 5 सिक्सर गुजरात के विरुद्ध खेली थी रिंकू सिंह ने। बिल्कुल गजब की बल्लेबाजी की थी। यश दयाल का तो मानो उसके बाद से बहुत गजब का परफॉर्मेंस रहा उस मैच के बाद से। जी हाँ, IPL क्रिकेट की वो एक अद्भुत पारी रिंकू सिंह की, एक उभरते हुए खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए। रिंकू सिंह कुछ भी समझ नहीं पाए इस गेंद के बारे में बल्लेबाज, तो अब केवल औपचारिकताएं शेष। एक तरफा कर दिया इस मैच को रिग्नेश 11 रानाल के खिलाड़ियों ने। गेंदबाजी खास तौर पर लाजवाब रही है। प्लेड ऑन, अंदरूनी किनारा बल्ले का और सीधे जाकर टकराई है स्टंप्स पर। विकेट मिलता हुआ यहाँ पर गणेश को। एक और बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटता हुआ। पिक्चर पूरी तरह साफ हो चुकी है, महज औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। रिग्नेश 11 रानाल एक और जीत की तरफ बढ़ती हुई। गजब का क्रिकेट। शुरुआत में ऐसा लगा था कि पूरी तरह बैकफुट पर है रिग्नेश 11, लेकिन उसके बाद उन्होंने पिछले आखिरी 2 ओवर में क्या ज़बरदस्त वापसी की। और जब गेंदबाजी के लिए आए तो शुरुआत से ही अटैक, बिल्कुल भी वापसी का मौका नहीं दिया उन्होंने। देखिए जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ आखिर के 2 ओवर्स में पहली पारी में, उसके बाद फिर मोमेंटम बदला नहीं है। जो मोमेंटम मिला यहाँ पर रिग्नेश 11 को, उन्होंने जारी रखा गेंदबाजी में भी, क्योंकि अब जब बल्लेबाजी में पारी को अच्छी तरह से फिनिश करते हो तो एक कॉन्फिडेंस ज़रूर गेंदबाजों को भी मिलता है। और शुरुआत आपकी यदि अच्छी रहे तो फिर सामने वाली टीम का मैच में वापस आना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोई ज़्यादा पलटवार देखने को नहीं मिला है इस रन चेज़ में बल्लेबाजों द्वारा।
गेंदबाजों ने पूरी तरह से डोमिनेट किया है बल्लेबाजों को। नए बैट्समैन आए हैं कमलेश, इस बार टर्न कर दिया है डिप स्क्वायर लेग की जानिब, फील्डर पहुंचे हैं गेंद पर, अच्छा एफर्ट, एक ही रन लेने का अवसर वहाँ पर बैट्समैन के पास। जयगांव देवी कुंभड़पाड़ा टीम के समर्थक काफ़ी अच्छी संख्या में आए यहाँ पर, उम्मीद थी कि आज की जो शाम है उनके नाम होगी, लेकिन रिग्नेश 11 रानाल के इरादे थोड़े अलग थे और बेहतरीन क्रिकेट उन्होंने दिखाई है। और इस बार सामने लॉफ्टेड शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर गेंद के नीचे और बढ़िया कैच, एक और विकेट झटकते हुए गेंदबाज। अब सिर्फ आखिरी गेंद का आना बाकी, एक और बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन की तरफ लौट रहे हैं। जबरदस्त क्रिकेट दिखाए आज पूरी तरह से रिग्नेश 11 रानाल ने। गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, फील्डिंग हो, हर एक विभाग में इनका पूरा 100% देखने को मिला है। यही कारण है कि एक तरफा मैच अपने नाम करिए 63 जैसे टोटल को डिफेंस करते हुए। तो आज का खेल समाप्ति की तरफ, केवल एक गेंद औपचारिकता है। कल दूसरा दिन ठीक सुबह 9 बजे खेल की शुरुआत होगी। पहला मैच सिटी इमर्जिंग का मुकाबला रहेगा। कल के भी सारे मैचेस सिटी इमर्जिंग से ही रहेंगे। हर्षित एंटरप्राइजेस और एमटीसी स्पोर्ट्स के बीच में मैच रहेगा। ठीक सुबह 9:15 बजे यहाँ पर रिपोर्ट करना है दोनों भी टीमों को। अंतिम गेंद खेलने के लिए कैप्टन क्रीज पर आगे निकले और पूरी तरह से बीट हुए। तो इस तरह से मैच समाप्त होता हुआ जयगांव देवी कुंभड़पाड़ा टीम हार गई है और मैच को जीता है रिग्नेश 11 रानाल टीम ने। लगातार दूसरी जीत रिग्नेश 11 के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम रिग्नेश 11 रानाल।